بات اب یہاں آ پہنچی ہے. تو میں اتنا ہی کہوں گا, مجھے افسوس ہے بہن, میں شرمسار ہوں آپ کے سامنے کہ یہ ہوا آپ کے ساتھ. اور ہم پوری قوم کے سامنے اپیل کرتے ہیں, پوری قوم کو کہتے ہیں کہ جاگو, جاگ چکے ہو. 1 بار 2 2 بار 4 2 3 بار 6 2 8 بار 2 8 بار 16 2 9 بار جی 18 2 10 بار بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام. یہ جو بچہ بھی آپ نے دیکھا, یہ اس گھر میں موجود تھا جہاں آج ایک بہت ہی تشویشناک قسم کی پریس کانفرنس ہوئی ہے. وہ پوری پریس کانفرنس آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھی ہے. اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا رد عمل کیا ہے وہ بھی میں اس ولاگ میں آپ کو دکھاؤں گا, تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے, کیا کرنے جا رہی ہے ان تشویشناک خبروں کے اوپر. لیکن اس بچے کو اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ پریس کانفرنس کیوں بلائی گئی ہے یا آگے کیا ہونا ہے. لیکن یہ ایک ایسے ٹراما سے گزر چکا تھا, تو تھوڑا سا اس کو اس کا دھیان بٹانے کے لیے یا واٹ ایور جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں, تو وہاں آس پاس جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے, تو اس بچے سے تھوڑا ہنسی مذاق کر رہے تھے. لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوگی اس کے بعد موڈ اور ماحول بالکل ہی بدل جائے گا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کا بھی اگر موڈ یا ماحول بدلنا ہے تو وہ بالکل آخر پہ رکھوں چیز, کیونکہ ڈپریسو ٹاپکس کی طرف میں بہت کم ہی جاتا ہوں, لیکن یہ بھی بڑی ضروری چیزیں ہیں. اس سے پہلے ذرا میں آج کے جو اس وقت کی تازہ ترین اپڈیٹس ہیں وہ بتا دیتا ہوں. خاص طور پر عمران خان سے متعلق آج ان کی جیل میں ملاقاتیں ہوئی ہیں, کیا وہاں پر چل رہا ہے, آج احتجاج بھی ہوا جیل میں, وہ سارا کچھ بھی. پھر بشرا بی بی کی رہائی کو لے کے حکومت کو کیا پریشانی ہے, ان کے کیمپ سے ڈیل کا بار بار تاثر آ رہا ہے, اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ ان کی آمد سے پہلے رنگ و روغن جو ہے وہ بنی گالا میں ہونا شروع ہو گیا تھا. تو وہ کچھ ویڈیوز مجھے موصول ہوئی ہیں, وہ رنگ و روغن کس نے کرایا تھا, کیا ہے اس کے پیچھے اصل سٹوری, وہ بھی آج اسی ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا. مجھے کچھ لوگوں نے ڈیٹیلز بتائی ہیں. لیکن اس سے پہلے عمران خان کے کیسز کے اوپر بات کرتے ہیں. آج ان کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس لگا ہوا تھا. ایک تو بریت کا بھی تھا 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے, اور دوسرا توشہ خانہ کیس میں جو سزا سنائی گئی ان کو, اس کے خلاف اپیل تھی. ان دونوں کیسز کی جو کاروائی ہے, جہاں پر آپ دیکھیں نا, نوٹس کریں, جہاں پر عمران خان اپیل کر رہے ہیں, جہاں پر عمران خان کے کسی کیس سے بریت چاہتے ہیں, وہاں پر کیس ایسے آگے 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 بھاگتا دوڑتا جا رہا ہے کہ وہ پگڑائی میں ہی نہیں آ رہا, اور تاریخیں بھی لمبی لمبی مل رہی ہیں. اور جہاں پہ ان کو سزا سنانی تھی انہی کیسز میں, اگر آپ ریورس چلے جائیں, جب سزا سنائے جانے کا معاملہ تھا تو کیسے ایک ایک دن میں اور پھر کتنے کتنے گھنٹوں تک سماعت ہوئی اور یہ سارا پروسیس کمپلیٹ کیا گیا. بہرحال عمران خان کا جو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بریت کا معاملہ ہے وہ 7 نومبر تک ملتوی ہوا ہے. پروسیکیوشنز کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ کچھ ریکارڈ جو ہے وہ ابھی ان کے پاس دستیاب نہیں ہے, تو اس لیے 2 ہفتوں کا انہوں نے وقت مانگا تھا, انہیں 10 روز کا وقت دیا گیا ہے. اور اسی طرح توشہ خانہ کیس جو ہے وہ بھی غالباً 14 نومبر تک ملتوی ہو گیا. تو یہ دونوں کیسز اب آگے بڑھ گئے ہیں. آج عمران خان کو سہولیات فراہم کرنے سے متعلق بھی کیس کی سماعت تھی. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جن کلاس کو ڈیزرو کرتے ہیں جیل میں, اڈیالہ جیل میں, اے کلاس بی کلاس یا جو بھی ہے, ان کو پراپر سہولیات ملنی چاہیے, کیونکہ وہ کوئی مجرم نہیں ہے. اس وقت ان کا جو سٹیٹس ہے وہ حوالاتی کا ہے, تو حوالاتی جب تک ہیں تو ان کو ساری سہولیات مل سکتی ہیں جس کے وہ انٹائٹلڈ ہیں. تو اب آج اس کیس کی سماعت ہوئی ہے اور نوٹسز جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کو. اب ان کا کوئی موقف آئے گا تو اس پر عدالت کوئی آرڈر کر سکے گی. پھر علی امین گنڈا نے درخواست دائر کی تھی کہ وہ عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں. ان کروشل مومنٹس میں علی امین گنڈا کی عمران خان سے ملاقات بڑی ضروری ہے اور بہت ڈیو ہے. کافی ٹائم سے وہ نہیں مل پا رہے, 4 اکتوبر کے بعد سے, جب سے ان کے خلاف کچھ اسلام آباد میں مقدمات, ناقابل ضمانت وارنٹ اور جو بھی 4 اکتوبر والا ایپیسوڈ ہوا اس کے بعد وہ نہیں ملے. تو آج عدالت نے اس حوالے سے بھی نوٹسز جاری کر کے اڈیالہ جیل کے جو متعلقہ حکام ہیں ان کو طلب کیا ہے کہ وہ آ کے اس بارے میں جواب دیں. پھر آج عمران خان کی اپنی بہنوں سے ملاقات ہوئی ہے, اپنے وکلا سے ملاقات ہوئی ہے, اور ان کی بہنیں اب کافی مطمئن ہیں ان کی صحت کے حوالے سے. باقی کنسرنز ابھی تک برقرار ہیں جن حالات میں رکھا گیا ہے, جو کنڈیشنز ہیں, لیکن جو ابتدائی طور پہ 4 اکتوبر کے بعد سے کنسرنز تھے تو ان کے حوالے سے وہ اب کافی مطمئن ہے کہ ان کی صحت جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہے. کنڈیشن جو ہے وہ ظاہری جو ہے وہ کافی بہتر ہے, اور عمران خان کافی ہائی اسپرٹ میں ہے. آل دو مشکلات ہیں لیکن وہ ہمیشہ سے رہے ہیں. تو یہ عمران خان کی آج کی اڈیالہ جیل کی تازہ
तरीन सूरत हाल और अपडेट थी। अब आ जाइए ज़रा बुशरा बीबी की रिहाई के मामले को लेकर बहुत सारे लोग जो हैं वो तरह तरह की बातें बना रहे हैं, ख़ास तौर पर हुकूमती कैंप से उठने वाली जो आवाज़ें हैं वो बड़ी ऐसा तासुर दे रहे हैं जैसे कोई डील हुई है पसे पर्दा। एक वज़ीर आता है, मैं नाम ले देता हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब ने आज बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये कोई ना डील है, इसके पीछे पहुँचे, इसकी तह तक पहुँचे कि वो बुशरा बीबी KP क्यों चली गई, पंजाब क्यों नहीं गई, बनी गाला क्यों नहीं रही, वहाँ पर ही क्यों गई। तो वो तासुर दे रहे हैं कि पसे पर्दा कोई ना कोई डील है। उन्हीं की जमात के जो दूसरे वज़ीर हैं राना सनाउल्लाह, वो कहते हैं कि कोई डील नहीं है, और वो खुलेआम कहते हैं कि डील किससे होनी है, फ़रीक तो हम हैं। तो वो अपने आप को एक फ़रीक समझते हैं, जबकि इमरान खान उनको कोई फ़रीक समझते ही नहीं है। इमरान खान उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, जिनसे करना चाहते हैं उनके बारे में वो खुला के बता चुके हैं। आजकल तो उनसे भी वो मेरा ख्याल कोई डेडलॉक है, उन्होंने हालिया कोई अपनी स्टेटमेंट दी थी कि अब उनसे भी बात वो करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर हुकूमत ये समझती है कि हम फ़रीक हैं और हमसे इमरान खान ने बात करनी है तभी डील होगी, तो ये शायद उनकी खामख्याली। अगर इनसे बात करके इमरान खान ने इनको लेजिटिमेट करार देना है, फिर तो वो कब का कर चुके होते, फिर ये साल 1.5 साल तो सख्ती बर्दाश्त ना करते। लेकिन ऐसा नहीं है। फिर तीसरी राय ये आती है जो कहीं ना कहीं सर्कुलेट कर रही है कि कोई अमेरिका ने कोई किरदार अदा कर दिया, उनका कोई नुमाइंदा यहाँ पर हुकूमत किसी नुमाइंदे से मिला है तो वो वज़ीरों से उनकी मुलाकात रहती है। ये अगर अमेरिका ने रसाई करनी हो तो वो इस लेवल पर नहीं होगी कि कोई ऐसे वज़ीर जिनका नाम भी किसी को इतने मालूम नहीं है, इंसानी हकूक़ के कोई वफाकी वज़ीर, ऐसा कुछ नहीं है। कोई अमेरिका का अभी अगर कोई अमेरिका का किरदार होगा, जो भी होगा वो 5 नवंबर के बाद ही होगा, जब वहाँ पे सदारती इंतखाब का नतीजा आ जाएगा। आइदर ट्रंप आए या फिर कैमला आए, जो भी हो वो 5 नवंबर के बाद ही इन चीज़ों को लेके आगे बढ़ सकता है। अभी उन सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है इलेक्शन की। एक और वज़ीर हैं, वो आके राय देते हैं कि ये डील ही हुई है क्योंकि रंगो रोगन जो है वो बनी गाला में होने लग गया। और मैं भी जब वहाँ पे गया था तो यही सिचुएशन थी, मैंने भी देखा कि वाकई भाई रंग रोगन तो हुआ है। तो सवाल तो ज़हन में था कि ये किसने किया। तो द रिपोर्टर्स प्रोग्राम में खावर घुमन साहब ने मेरे से पूछा उस दिन बराह रास्त कि भाई फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि कोई रंगो रोगन वहाँ पे हुआ, तो क्या ऐसा है? मैंने कहा बात तो इनकी ठीक है कि यहाँ पर हुआ तो है। तो फिर मुझे जो बनी गाला के लोग हैं जो वहाँ पे इंतज़ामात संभालते हैं, इमरान खान की साइड से मैं बता रहा हूँ, जो इमरान खान के लोग वहाँ पर अभी मौजूद हैं, काम करने वाले जो मुंतज़मीन हैं, उनमें से किसी एक ने मुझे बताया कि भाई इसमें किसी का कोई कमाल नहीं है। जब से बुशरा बीबी यहाँ पे सब जेल में रह रही थी तो हमारे लिए भी ये सब जेल ही थी, हम भी बाहर नहीं निकल सकते थे, कहीं घर से बाहर जा ही नहीं सकते थे, हमें भी उनके साथ ही रहना था। तो जब बुशरा बीबी चली गई अडयाला जेल तो फिर हमारे पास करने के लिए और कुछ नहीं था, तो हमने ये काम करना शुरू किया अपनी मदद आप के तहत। वो बता रहे हैं कि हमने जो ईंटें दबी हुई थी वो उठा के अपने लोगों को निकाल के ला के लगाया। तो वो कह रहे हैं कि मेरे पास तो वीडियोज़ भी हैं, जब हम ये कर रहे थे तो उन्होंने मुझे वीडियोज़ भी भेज दी कि ये सारा पेंट हमने खुद किया। वो बता रहे थे कि 1500 रुपया पेंट के ऊपर उनका खर्चा हुआ, और ईंटें वगैरह उन्होंने दबी हुई जो आसपास थी उनमें से निकाली, और कुछ बनी गाला में किसी काम की वजह से पड़ी हुई थी तो वो निकाल के उन्होंने ये गमले और पौधे शौधे लगाए हैं। तो वो जो डील का तासुर महज इसलिए दे रहे हैं कि कोई रंगो रोगन हो गया, तो वो तो उनके काम करने वाले घर के मुलाजमिन बता रहे हैं कि ये तो सारा हमने किया है और हुआ भी सारा 1500-2000 रुपये में है। तो खैर ये इस वक्त की सारी सिचुएशन है। अब इस सारे मामले में जो एक बड़ी डेवलपमेंट है वो ये कि इमरान खान को अडयाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा लाने के हवाले से या ले जाने के हवाले से बाज़गिश्त सुनाई दे रही है। अब मुझे नहीं पता, या मैं नहीं कह रहा कि ये उसी मुमकिना मुबैना या जो भी इस टाइम हवाओं में फ़िज़ाओं में बातें चल रही है कि किसी डील के तहत ही कुछ चीज़ें सर्कुलेट कर रही हैं। लेकिन आज मैंने देखा कि जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं PTI के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की शेख वकास अकरम ने, और उन्होंने रेफरेंस दिया मरियम नवाज़ के उस बयान का जो उन्होंने इमरान खान का नाम लिए बगैर 1-2 रोज़ पहले किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया कि फितना भी जल्द ख़त्म हो रहा है, और ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो PTI ये क्लेम कर रही है कि ये सारा जो थ्रेट है ये इमरान खान के लिए, और चूँकि अडयाला जेल पंजाब की हदूद में है, पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ हैं, तो इमरान खान को थ्रेट है बराह रास्त। तो वो ये सोच रहे हैं कि हम अपनी लीगल टीम से मशवरा कर रहे हैं, और बल्कि उन्होंने अपनी लीगल टीम से ये कहा एज़ पर शेख वकास अकरम, ऑल्दो कि ये मुश्किल चीज़ है, लगभग नामुमकिन है, लेकिन
शेख वकास अकरम का ये दावा है कि उन्होंने अपनी लीगल टीम से ये कहा है कि इस बारे में देखा जाए, गौर व खोज करें, अगर कोई प्रेसिडेंट ऐसा पहले मौजूद है, कोई ऐसी मिसाल पहले मौजूद है, तो हमें इमरान खान की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए अदालत से रजू करना पड़ेगा, कोई पिटिशन फाइल करें व्हाटएवर कि इनकी जो हिफाजत है वो डयाला जेल में ठीक से नहीं हो रही तो इनको खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल कर दिया जाए, ये अपने केसेस वहीं पे लड़ें और सारी चीज़ें इसी तरह से चलें जैसे यहाँ पर चल रही हैं, लेकिन कम अज़ कम सिक्योरिटी का माहौल बेहतर हो। वैसे ये एक है तो आइडियल सिचुएशन उनके लिए, पीटीआई के लोगों के लिए, जब तक इमरान खान अपने केसेस से फारिग नहीं हो जाते, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, लगभग नामुमकिन है। लेकिन फिर भी पीटीआई का ये दावा है कि उन्होंने अपनी लीगल टीम के ज़िम्मे ये काम लगाया है कि वो इसके बारे में गौर करें, और अगर हो सकता है तो क्यों नहीं उनको पिटिशन कोई फ़ाइल करें, सुप्रीम कोर्ट में करें, हाई कोर्ट में करें, कहीं पे भी, क्योंकि अगर मरीम नवाज़ के बयान को जवाज़ बना के वो ये कर सकते हैं या कोई मार्जिन ले सकते हैं, कोई लीवरेज ले सकते हैं, तो उन्हें लेनी चाहिए। अगर यहाँ पर भी रहना है तो कम अज़ कम सिक्योरिटी हालात पहले से बेहतर करने की एटलीस्ट अदालत से डायरेक्शंस ले लेनी चाहिए। अच्छा जी, आज अडयाला जेल के बाहर ख़वातीन का एक एहतजाज भी हुआ। पीटीआई वुमेन विंग जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में उनकी जो ख़वातीन है वो पहुंची और काफ़ी नारेबाजी की, एहतजाज हुआ। लगता नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में एहतजाज होगा, मतलब कोई बहुत बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट भी नहीं था, लेकिन चूँकि वुमेन विंग की तरफ से था तो उनकी एक रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर नज़र आई। ऑल्दो के बाद में दौड़ें भी लगी पुलिस की भी और ख़वातीन भी बचते बचाते निकलने में कामयाब रहीं, लेकिन जो एहतजाज हुआ वहाँ पर वो काफ़ी सोशल मीडिया पर उसके विजुअल जो हैं वो सर्कुलेट करते दिखाई दिए। कंवल शोज़ब वहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने एक प्रोटेस्ट को लीड किया। आपने एक तस्वीर देखी थी इमरान खान की बहन नौरीन बीबी की, वो वहाँ पर अकेली मौजूद थी, तो उनकी उस तस्वीर के बाद वुमेन विंग जो है वो काफ़ी एक्टिव हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी कि मखसूस नशिस्तों के लिए तो ख़वातीन आगे आगे फिर रही थी, और अब जब वो फ़ैसला आ गया या वो मामला सारा गुजर गया तो अब इमरान खान की सिर्फ बहनें खड़ी हैं। तो उसके बाद हमने देखा बनी गाला भी पहुंची, इधर भी आगे पीछे वुमेन विंग की एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन नज़र आ रही है। एनीवेज, ये आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स थी। बाकी गवर्नमेंट के कैंप्स में आपको पता है जुडिशल कमीशन के नामों को लेके बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से हुकूमत इस वक्त डेस्परेट अटैम्प्ट्स कर रही है कि जो अदलिया का मामला है वो किसी तरह से बिलवास्ता बिलावास्ता जो भी कह लें वो हुकूमती कंट्रोल में रहे। और अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो मामला है जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर को वापस लाए हैं या आफरीदी साहब, अब उसका भी तोड़ निकाला जा रहा है कि जो आइनी बेंच बनाया जाएगा उसका सरबरा भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल कर दिया जाएगा ताकि मेजॉरिटी जो है वो हुकूमत के पास रहे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। जजेस की तादाद बढ़ाने के ऊपर भी बातचीत चल रही है, उसके ऊपर पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बता दूंगा। अभी जो आज मैंने रिकॉर्डिंग की है उसका जो बहुत एक मायूस कुन सा हिस्सा है उसको मैं ख़ुद जानबूझ के ज़रा माइनस कर रहा हूँ। बाकी जो रद्द-ए-अमल है वो आप ज़रा पीटीआई के लोगों का सुनिए कि एक ख़ातून ने जब ये बात कही कि उसके घर पे इतने लोग आए और उनके साथ क्या क्या कुछ हुआ, जब उन्होंने अपनी पूरी आप बीती सुनाई तो उसके ऊपर रिएक्शन क्या था पीटीआई के लोगों का, वो आप ज़रा सुनिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अगर इन्होंने तशद्दद करना है तो तशद्दद करने के और बहुत सारे तरीके हैं, किसी और तरीके से तशद्दद कर लें, इस तरह तो मत करें। मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है उस दिन से। मैंने अपने हस्बैंड को बताया जो वाक़या हुआ है हमारे साथ, इस चीज़ को रोका जाए, हम पूरा मन शहरी हमें सुकून से रहने दें, और सियासत को जो है ना घर से बाहर रखें, घरों में ना लेके आएँ प्लीज़। जी, जो बात बहन ने कर दी उसके बाद तो कुछ बात करने की गुंजाइश नहीं है। जो हमारी बहन के साथ हुआ है ये पाकिस्तान की हर बहन के साथ हुआ है। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि इस एक घर में ये वाक़या हो गया। हम सब आज गैर महफूज हैं। आपको नहीं पता कि आपकी बहन के साथ क्या होगा, मेरी बहन के साथ क्या होगा। ऐसा दौर मैं नहीं समझता इस खित्ते में, दुनिया में 500 साल में कभी आया है कि लोगों के घरों में घुसकर जिस किस्म का तशद्दुद हमने अभी सुना यहाँ हुआ है, ये चंगेज़ खान के दौर में भी नहीं मेरा ख्याल हुआ होगा। इतनी इज्जत वो भी रखते थे चार दीवारी की। जो अब हम देख रहे हैं, हर कदर हमारी पामाल हो चुकी है, वो दीन की कदर हो, वो तमद्दुन की कदर हो, किसी को ख्याल नहीं है। ये वफाकी दारुल हुकूमत है, यहाँ जो कुछ होता है इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी वज़ीर आज़म साहब की है, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की है। और अगर वो कहते हैं वो बेबस हैं, जैसे थाने वालों ने कहा कि हम बेबस हैं, तो हमें जवाब दिया जाए कि कौन है इस सब का बायस, किसके हुक्म पर यह सब कुछ हो रहा है। आए वो सामने, हमारी आंखों में आंखें डालें और कहें कि उन्होंने इस मुल्क को इस तरह चलाना है। एक आईनी तरमीम करनी थी, उसके लिए ये सब कुछ किया गया। इस तरह आईनी तरमीम होती है, इस तरह कौम के ज़मीर पर हमला किया जाता है।
اس طرح غیرتوں کو للکارا جاتا ہے. یہ ہے ہمارے سامنے اس وقت صورتحال. پاکستان کی تاریخ میں کبھی اگر واضح تھا کہ حق کس طرف ہے اور ظلم کس طرف ہے تو وہ آج ہے. آج کوئی اور بحث باقی نہیں رہتی. آج ہمیں پتہ ہے کہ حق سچ سچائی کیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ظالم کون ہے, جابر کون ہے. اس قوم کو اب فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے چونٹیوں کی طرح رینگنا ہے, محکوم رہنا ہے, اپنے گھروں کو غیر محفوظ رکھنا ہے, یا اس نے آواز بلند کرنی ہے سچ کے لیے, شرافت کے لیے. میں کوئی بڑی بات آئینی نہیں کرتا, یہ سچائی اور شرافت کی بات ہے. ہمارے گھروں کے اندر ہم نے محفوظ رہنا ہے یا محفوظ نہیں رہنا. بات اب یہاں آ پہنچی ہے. تو میں اتنا ہی کہوں گا, مجھے افسوس ہے بہن, میں شرمسار ہوں آپ کے سامنے کہ یہ ہوا آپ کے ساتھ. اور ہم پوری قوم کے سامنے اپیل کرتے ہیں, پوری قوم کو کہتے ہیں کہ جاگو, جاگ چکے ہو. اب وقت ہے کہ ہم اپنی آواز اتنی بلند کریں کہ یہ ظلم کے جو مینار ہیں یہ گر جائیں. ہم نے آج عہد کرنا ہے کہ ہم اس ظلم کو مزید نہیں سہیں گے. ہم نکلیں گے, ہر گلی کوچے میں, ہر قریے میں ہم باہر نکلیں گے ظلم کے خلاف. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. بالکل بالکل ہوگا, بالکل ہوگا. دیکھیں, یہ چیز بٹن آن کرنے سے نہیں ہوتی. آج جو میں بات کر رہا ہوں, میں پاکستان کے عوام سے آپ کے توسط براہ راست بات کر رہا ہوں. یہ فیصلہ پاکستان کی عوام کو کرنا ہے. جب ایک قوم بیدار ہے تو اس قوم کو اپنی بیداری کا ثبوت دینا ہے, اور یہ ثبوت بہت جلد آپ دیکھیں گے. بہت شکریہ. جی, یہ جو بہت افسوس ہے اور سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ پاکستان ہے یا کبھی کہ غیر ملکی بھی اس طرح ایک اپنے غلاموں کے ساتھ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ریاست ہوتی ہے ماں کی جیسی. تو یہ ریاست ہے, یہ ریاست کا کردار ہے. ہمیں تو شرم آتا ہے. اور بلاول بھٹو صاحب, آپ کا بہت خوبصورت جمہوریت ہے. آپ جمہوریت کے نام پہ جو ہے نا ادھر اسمبلی میں وکٹری کا نشان بناتے ہیں, بڑا جشن مناتے ہیں. آپ جشن منائے کہ جس طرح ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, یہ آپ کا جشن ہے. یہ آپ کے نانا نے جو 1973 آئین بنایا تھا, ایک تحفہ دیا تھا, اس کو سبوتاش کرنے کے لیے جو طریقہ آپ نے بنایا, یہ دیکھ لیں. اور میاں صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس میں لوٹا ووٹ نہیں ہے, اور ہم نے جو ہے نا ایک ہمارے پاس اکثریت تھی. سب سے پہلے تو تمہارے خود اپنی اکثریت نہیں ہے. تم ٹوٹل جو ہے نا 17 سیٹوں کی جیتی ہوئی, اور جس طرح تمہیں پارم 47 سے جتوایا گیا, کیا تمہارے اندر کوئی شرم اور کوئی حیا نہیں ہے؟ کیا کوئی ضمیر تمہارا جاگتا نہیں ہے؟ کیا کوئی آپ کو اشارہ بھی نہیں ہوتا؟ ادھر بیٹھ کے پھر کہتے ہیں پھر بھی نمبر نہیں ہے, اور پھر جس طرح نمبر بلاتے ہو کہ اپنی پاکستانی قوم کی خواتین کی, بچوں کی بے حرمتی کرتے ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے. یہ تم جمہوریت ہے؟ یہ جمہوریت نہیں, یہ بدترین پستائیت ہے. یہ انتہائی ڈکٹیٹرشپ ہے. یہ ظلم اور جبر. اگر ان کا خیال ہے کہ ہم اس سے دب جائیں گے, یہ ان کی غلط فہمی ہے. دیکھیں, ہم ہیں پولیٹیکل پارٹی, ہم کوئی ملیٹنٹ نہیں ہیں. ہم ایک سیاسی پارٹی ہے. ایک سیاسی پارٹی کی طور پر ہم اپنا پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے. ہم اپنی جدوجہد سے واپس نہیں ہوں گے. ہم پیراملٹری فورس نہیں ہے کہ ہم کوئی فزیکل لڑیں گے. ہم آواز اٹھائیں گے, ہم نکلیں گے, دنیا کے سامنے اس قسم کے ظلم کا کریں گے. اور اگر ان کا بھی کہہ رہے ہیں کہ 27 جو ہے نا امینڈمنٹ لا رہے ہیں, اس کے لیے ہم نے یہ بھی سوچا ہے, اور میں نے آج سیکرٹری جنرل صاحب سے ہم نے ایک مشورہ بھی کیا ہے, ہم دیگر اپوزیشن پارٹیوں کو بھی اکٹھا کریں گے. ہم بتائیں گے جو جمہوریت پسند پولیٹیکل پارٹی ہیں, نکلے, اگر یہ نکلے تو پاکستان میں کسی کا کوئی قانونی حق نہیں رہے گا, کانسٹیٹیوشن حق نہیں رہے گا, کوئی کسی شہری کا حقوق نہیں رہیں گے, اور آئین معطل ہے, اور مزید یہ اپنا کوشش کریں گے. انشاءاللہ تعالی ہم اپنی بہن آپ کے ساتھ ہیں. جو ظلم ہوا ہے, جو جبر ہوا ہے, ان کے خلاف ہر فورم پہ آواز اٹھائیں گے. دیکھیے, یحییٰ آفریدی صاحب سے ہمیں بہت اچھی امیدیں ہیں, اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئینی ترمیم جس کے ذریعے وہ چیف جسٹس بنے ہیں وہ درست نہیں ہے. آئین پر حملہ ہوا ہے, لیکن وہ اب چیف جسٹس ہیں, انہوں نے ایک عہدہ سنبھال لیا ہے, اور ان پر ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے تمام اختیارات کا استعمال کریں. یہ ایک فرض ہے, ایک فریضہ ہے جو ان کو سونپا گیا ہے. اور ہم دیکھیں گے آئندہ آگے کیا ہوتا ہے. جو پچھلا دور گزرا ہے 13 ماہ کا, جب عدالت نے آنکھیں بند کر لی تھیں, ہم متعدد بار عدالت کے پاس گئے, ہم نے کہا ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دو, ہمارے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں, اس کی بجائے ہم سے ہمارا نشان بھی چھین لیا گیا. خواہش تو یہ تھی کہ ہمیں نیست و نابود کیا جائے, لیکن پاکستان کی عوام
اٹھی पाकिस्तान की आवाम ने हर जुल्म के बावजूद अपना फ़ैसला दिया। तो हम तकाज़ा करते रहेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह अदालत से अगर हमें इंसाफ मिलता है तो बहुत अच्छा, वरना हम ये इंसाफ पाकिस्तान की आवाम से मांगेंगे। जहाँ तक ताल्लुक़ है पिछले 2 हफ्तों का, देखिए ये एक बयानिया बनाया गया है एक हद तक, लेकिन अब मैं उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ूँगा। इमरान खान साहब मौजूद हैं, हमारी उनसे तफसीली मुलाकातें हो चुकी हैं और एक लाया अमल जो है उनकी हिदायत के मुताबिक तय कर दिया गया है। आप अगले चंद दिनों में देखेंगे कि इस लाया अमल पर हम कारबंद होंगे और हमारी तहरीक जो है वो आपको नज़र आएगी। पहले काजी साहब के टाइम पे तो ये था कि लोग अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखना ही खत्म कर दिया था आखिरी टाइम पे कि यहाँ से इंसाफ नहीं मिलना। अब नए चीफ जस्टिस आए हैं, क्या आप कोई खुद से दरख्वास्त लेके जाएंगे, क्योंकि आर्टिकल 184(3) के तहत तो इख्तियारात महदूद कर दिए गए, खुद से कोई दरख्वास्त ले जाने का इरादा है? बिल्कुल खर्चा है कि ये भी आईनी बेंच के पास चला जाएगा, क्योंकि बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है तो ये भी आइन में दर्ज है। देखिए आईनी बेंच बनाया इसलिए गया है कि वहाँ मंजूर नज़र जज बिठाए जाएं जो वही करें जो पिछले 13 माह हुआ है, बात को पसे पुष्ट डाल दें। तो हम तकाज़ा करेंगे, हम बिल्कुल उस बेंच के अलावा भी जो सुप्रीम कोर्ट है मजमूई तौर पे उसके पास जाएंगे और ये मामलात उनके सामने रखेंगे। लेकिन आईनी बेंच के हवाले से आपने ठीक कहा, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इसीलिए हैं कि आईनी बेंच में किन जजों का तकर्रुर होना है वो बिलाखिर हुकूमत तय करेगी। इस वक्त जो जुडिशल कमीशन बनने जा रहा है उसमें अक्सरियत हुकूमत की होगी। ये जो हम कर रहे हैं अभी, चूँकि ये जो कुछ कर रहे हैं ये सिर्फ तहरीक इंसाफ का इशू नहीं है, ये पूरे पाकिस्तानियों का इशू है। इमरान खान जो इस वक्त जद्दोजहद कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा, वो इस मुल्क पे आइन और कानून की बदतरती के लिए कर रहा। तो हम तमाम पाकिस्तानी जितनी भी अपोजिशन हैं, सिंध में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पंजाब में हैं, बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में, या जो स्टेक होल्डर्स हैं, लायर्स के नुमाइंदे हैं और दीगर ताजर और मजदूर और किसान तलबा, उनको भी अप्रोच करेंगे। हमने एक बहुत बड़े लेवल पे अभी इस तहरीक को आगे बढ़ाना है ताकि हम ये जुल्म और जबर और ये गैर आईनी इक़दाम को रोकें। देखिए मैं अर्ज़ कर दूँ, इत्तेहाद ऐसा नहीं था, हमने उनसे गुफ्तगू की जो एक उसूली गुफ्तगू थी। हमने उनसे यही कहा कि ये तरमीम पाकिस्तान के हक़ में नहीं है, ये तरमीम नहीं होनी चाहिए। हमारी बात को उन्होंने सुना और जो बुनियादी हुकूक पर एक हमला किया जा रहा था, जो मिलिट्री कोर्ट्स बनाने की बात हो रही थी, वो नहीं होने थी। 26वीं आईनी तरमीम को हम दुरुस्त नहीं समझते। जो हुआ है, जो इसमें कर दिया गया है, वो भी एक हमला है पाकिस्तान के आइन पर, पाकिस्तान की अदलिया पर, और हम इसको बुरा कहते हैं। लेकिन एक हद तक मौलाना साहब हमारे साथ चले, उससे आगे नहीं चले, ये एक हकीकत है। इससे आगे अब अगर वही सब कुछ वापस आता है, बुनियादी हुकूक पर हमला वापस आता है, मिलिट्री कोर्ट्स की बात होती है, तो हमें यकीन है कि मौलाना साहब खुद उसकी हिमायत नहीं करेंगे। ये उनकी अपनी सोच है, ये उनका अपना एक उसूली मौक़िफ़ है, उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है। हम तो मुखालफत करेंगे ही, लेकिन मुझे यकीन है कि वो खुद भी इसकी मुखालफत करेंगे। 26वें आईनी तरमीम के वाले से पूछा था कि अगर ये आईनी बेंच बनता है तो आपने गंडापुर साहब कह रहे थे हम तस्लीम नहीं करेंगे, आज आपने कहा है कि आप चीफ जस्टिस को तस्लीम करते, तो क्या समझते हैं कि अब इसको आप तरमीम को चैलेंज करेंगे या नहीं? चैलेंज करेंगे और हम इस तरमीम को दुरुस्त नहीं मानते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने मुकदमे लड़ना छोड़ देंगे। जो अदालत हमें मुयस्सर है उसी अदालत के पास हमें जाना है। वो इमरान खान साहब के मुकदमे हों, हमारी पार्टी के मुकदमे हों, बहन का मुकदमा हो, जो भी अदालत होगी हम अपना आइनी हक़ जो है उस अदालत से मांगेंगे। अगरचे हम समझते हैं कि आइनी बेंच जिस तरह बनाया गया है ये दुरुस्त नहीं है, आइनी तरमीम जो की गई है वो दुरुस्त नहीं। जजेस तादाद के हवाले से क्यों, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 17 से उसको 21 या 24 जो भी करती है करें, उसमें हमें एतराज़ है। थैंक यू वेरी मच।